Assalamu alaikum. Welcome to lecture 2 of Software Engineering 1, course code CSC 291. In the last lecture, we had an introduction of software engineering. We discussed the definitions of software engineering and what are the common problems that the software engineers or the software industry face. And we discovered that the solution to all those problems is systematic software engineering. And in the last lecture, you would have seen a word, software process models. In fact, 3 words, software process models, repeatedly in different slides. Today's lecture will focus on what these software process models are. We will discuss few of the traditional process models. We'll see what are their drawbacks and what are their advantages. And the following lecture we will go towards, we'll see different examples that where these process models apply. So as I already told you, this is the outline of today's lecture. I will tell you what a generic process framework is. Then the models that we are going to discuss today, number 1, we'll discuss the waterfall model, number 2, the incremental model, then the prototyping model, and finally the spiral model. And then we will summarize. In the summary, I will try to tell you the pros and cons of different process models. Now, in a generic process framework, usually we have 5 different activities. Number 1, we will have communication, then we have planning, then we have modeling, and following it we have construction and deployment. Now, what do we mean by communication? When, as I told you in the last lecture, that one of the most important things when you're developing a new software is that you have to go to the customer and get the requirements. If you guys remember that picture that we had in the lecture 1, where the customer didn't know what he wants the software company to make. So if that's the case, then the people who actually go to collect those requirements from the customer, they won't be able to get the right things out of the customer. So it is very important that whoever goes to the customer side, he should identify the key personnel. By the key personnel, I mean the key stakeholders who know how the system works and who has the technical knowledge, or even if they don't have the technical knowledge, they should have knowledge of their own business processes. So in communication, the communication means the communication between the customer and all the other stakeholders. So the basic output of this first activity in the process framework communication is, or it should be, the set of requirements. Because, and this, you can imagine the importance of this, because if you don't have the correct requirements, you will end up making the wrong thing. So this is really important, that the requirements that come out of it, they represent what the customer wants. So this is the key thing in the communication, the output is requirements. And how do we do it? We communicate with the customer and we communicate with the other stakeholders. Following the communication, we have planning. Now, planning is really important when you are following, software engineering, because in this plan, now this is, you will see that these generic activities, they, in all the different process models that we will see now, waterfall model, incremental model, prototyping, and spiral, you will see these activities are there, but it's the order in which they are done that differentiates those different process models. Okay, so when we talk about planning, so the planning means that you plan everything. Okay, so you would make a plan that when and how many people will go to the customer site to collect the requirements. Okay, and how many days they will take in collecting those requirements. Secondly, in the plan, you will divide the overall project into different tasks, and you will assign resources to each task. You will identify different work products. For example, you say that person A, B, and C will go to collect requirements. For example, if you're making a university management solution, okay, where you have accounts, you have admin, you have admissions, you have finance, okay, then you say that, okay, person A, B, and C from the software company would go to the finance to collect the requirements, person D would go to collect requirements from accounts, person E would go to collect requirements from
So basically what you're doing is you have identified those three very generic tasks, that collecting requirements from finance, collecting requirements from admissions, collecting requirements from accounts, and you have assigned resources to these. And what are the work products? Work products are that once you perform these tasks, what will you get out of it? Okay, so for example, when people would go to collect those requirements, what will they get? They will get set of requirements on which they will base their solution. Okay, and once these things are decided, you can make a work schedule. By a work schedule, we mean that you say that you will have the list of tasks and then you will assign time to them. Okay, that it will take 10 days to collect requirements from finance, it will take 20 days to collect requirements from, let's say, accounts, and then, you know, following the other activities, that how much time will it take in designing the software, how much time will it take in implementing it, and how much time will it take in deployment. So a work schedule, when you say a project schedule, so it includes everything from the first activity or the first task that you do when you start a project till the final deployment. So this is very important, that the work schedule, once you define the work schedule, then everything is monitored against that work schedule. You know, for example, if you monitor your progress, then you will monitor it against the work schedule. So planning is really important. When you talk about planning, then you're planning the whole execution of the project. Okay, not only the requirements phase, not only the design phase, it includes everything. Even when you go to deployment, it includes that how many days will you take when you actually go to deployment. Obviously things can go wrong and your plan might not work, but at least you plan. Okay, the next activity or the next phase in a generic process framework is modeling. So in the modeling, what we do is we basically analyze the set of requirements that we have gathered, and then we try to design a solution. Okay, now designing is really important, because before taking this course of software engineering 1, you must have taken the course on object-oriented programming or other programming courses. Now you would have done few projects or few semester projects. Now in those projects, first thing that you want to know is what you have to do. Okay, and once you know that, then you design the problem. By design here, it means that how many classes you would have in your solution. And this is a very crude example. And what will be the architecture? Now we'll see what architecture design is in the following lectures, but at the most abstract level or at the highest level of abstraction, we in the design we say we'll design the architecture of the software. By architecture means that we will design that how many components we would have in this solution, and then when we go to the lower level of abstraction, we define how many classes we will have in our solution, and then we'll say that what will be the algorithms or what will be the data structure of each class. Okay, so this is how we design the problem. So basically it leads from the requirements and then to design. Okay, and importance of design is, you know, can be a very relevant example would be, just imagine in terms of architecture design, when somebody is building a house, okay, then they just do, you know, the usual procedure is that first of all they hire an architect who would make an architecture of the house, and then the builder actually start building it. Okay, he just cannot do that he come to the site straight away और वो आते ही जी घर बनाना शुरू कर दे. This would never happen. Okay, so this is really important. Architecture design की importance बहुत ज़्यादा है कि अगर आपका architecture सही नहीं होगा तो you will end up making the wrong thing. So this is really important. The next phase of a generic process framework is construction. Construction के अंदर आपकी coding भी आ जाती है और construction के अंदर आपकी testing भी आ जाती है. So what is the flow? You have the requirements, then you design the problem based on certain plan, and then you have construction. By construction it means it's not manual construction, it's basically coding the problem. जो आपने design बनाई है, जो आपने classes बनाई है, you actually write the code for them. Okay, और coding पे ही ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि you want to be sure कि जो चीज़ आप कस्टमर को देने जा रहे हैं that is absolutely correct. ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी कंपनी की रेपुटेशन शामिल है, योर रेपुटेशन इज इन्वॉल्व्ड, और अगर आप सही चीज़ बना के कस्टमर को नहीं देंगे तो यू माइट नॉट गेट पेड. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट that before you deliver or before you deploy, which is the final stage of these generic process frameworks, is that you actually test the code that you have written. Okay, so when you say we test it, then you have to be sure that
First of all, the simplest form of testing is functional, is to test that whether the functional requirements are working fine. So the functionalities, जो चीज़ें कस्टमर ने कहा था कि जी ये चीज़ होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा था कि लॉगिन पासवर्ड डालूँ, लॉगिन पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, ठीक है. तो वन टेस्ट, एक तो टेस्टिंग आपने करनी होगी, ये करनी होगी कि आप लॉगिन पासवर्ड डालें, सही लॉगिन पासवर्ड डालें तो जाना चाहिए, गलत डालें तो नहीं जाना चाहिए, एम्प्टी हो तब भी नहीं जाना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ यू टेस्ट. तो बेसिकली वट एवर कोड यू राइट, you will test it. And then the final phase of the generic process framework is deployment. By deployment we mean that you have to actually go to the customer side and implement the solution there. Okay, so now for example, if you are in an industry which they were not computerized at all, and now you are implementing, you're making them paperless. Okay, so you're implementing an ERP system there. So deployment is very crucial. And as the complexity of the project or the problem that you're solving increases, deployment becomes more and more difficult. For example, as I gave you example of the university solution, in a university आपका finance होता है, आपका accounts का section होता है, आपके admins होते हैं, और आपका maybe you have an hostel और आपका transportation system होता है. Now broadly there are 5-6 modules. Now if this is a big problem. So when you go to a bigger university, okay, then these 5 modules might be deployed in different places which are physically disjoint. So this is very important. So as the complexity of the project or the problem increases, deployment becomes more and more challenging. Okay, so just a quick review that we have 5 main activities in a generic process framework. Number 1, we have communication, then we have planning. Communications main output is the set of requirements. Planning's main output is you identify the tasks, you assign resources, and you make a schedule of the overall project, that how you will do it, how much time you will take. And then we have modeling. So in the modeling, we basically analyze and design the problem, okay, or design the solution. At number 4, we have construction. So the construction's main output is basically the code that you have written, and then you will test the code, or you test your implementation, and then finally you have deployment. And I think the deployment's main output is that the customer actually signs in project completion. You get a certificate from the customer where customer says कि the project is successfully deployed at their site, and then following that you basically get the payment. Okay? If the customer is not satisfied when you go to deployment, then you might not get paid. You have to satisfy the customer, whoever people who are working there. So so this is really important, the deployment stage. Okay ji, now let's look at, I think, 2 of these activities. First of all, modeling. So I picked this because those were the 2 kind of technical terms, that how you actually model, the modeling phase. So first is software requirement analysis. This is really important, that you analyze the requirements that you have gathered from the customer. Okay, now why these requirements, or how these requirements are helpful when you're actually making a software. This might not apply to your experience as software engineer so far, because I think you have done few semester projects where you didn't consider all the requirements. As soon as your teacher gave you the project, you started implementing and you started coding it. This is the normal practice. This is what I used to do when I was a student. That as soon as we were given a project, I was so anxious in starting and coding the project that I straight away used to go. I never used to think about the solution when I started my BS. So this is really important. Okay, so what happens in the requirement analysis stage? It helps the software engineers to better understand the problem they will work to solve. Okay, because it is really important that you should know what you're trying to solve, because if you don't know that, then you will always end up making the wrong thing. Okay, so you should know what the problem is. Okay, and it basically encompasses, or it includes, the set of tasks that lead to an understanding of what the business impact of the software will be. Okay, for example, as I gave you an example of enterprise resource planning software, now the business impact in that case would be huge. Okay, because if that project, after you deploy it at the customer site, and if that fails, then the company won't be able to do anything, because you have deployed all their processes on computers now. Okay, and the things that they used to do manually, they don't do it anymore. Okay, so the impact would be huge.
Okay, and you in this analysis stage, you should also know that, because when you actually deploy the solution at the customer side, now at the time of communication you might be dealing with only certain number of people, let's say 4, 5, 6, or maybe 10, 20. Okay, but when the solution is actually deployed at the customer side, then if it's a big organization, then maybe hundreds of people would be using your solution. Okay, so you should know how different people will interact with your solution. Okay, this is very important, because in design there is another thing which we call user interface design. Now when you're designing this user interface, you should know your users, that how or what's their knowledge, how will they use your system, because you want to make it easy for them. Okay, and how this whole process of requirement analysis is done. What we do is we basically, first of all, we have different textual representation and we make different diagrams. When we discuss requirement engineering, in that lecture we'll see how we basically gather requirements, how different diagrams are helpful. One of the very basic diagram when you go to collect requirements is a use case diagram. Okay, so how that is helpful, for example, you go to the admissions office, okay, and you are going there to collect requirements. Okay, you know that there would be an admission or admin officer there, so आप क्या करेंगे, you will make an actor. This is in a use case, you have actors and you have the activities that that actor can perform. So the actor here is the person who will use your system, okay, or the person at the customer side, or an employee at the customer side who will use your system. So he's the actor. Now what this admin officer would do, first function that he would do is he might do certain things. तो इस डायग्राम के अंदर आप क्या करते हैं कि ये कस्टमर जितने काम कर सकते हैं आप उन सबको लिस्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर हमने क्या लिस्ट कर दिया, वी हैव लिस्टेड ए, वी हैव लिस्टेड बी एंड लिस्टेड सी. तो ए बी सी क्या है, फॉर एग्जांपल ए एक्टिविटी है कि ही बेसिकली सप्लाइज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स टू द स्टूडेंट्स, और ही रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, और ही बेसिकली असाइंस सर्टेन कोर्सेज टू द फैकल्टी मेंबर्स और स्टफ लाइक दैट. सो इस डायग्राम का फायदा क्या हुआ कि इस एक डायग्राम के बनाने की वजह से हमने 3 या 4 रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर रिकॉर्ड कर ली, और हमें ये भी पता लग गया कि ये वाला यूज़र हमारे सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा. ठीक है, हमें इसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना है, एक हमें इसको फॉर्म देना है जिसमें ये कोर्सेज सेलेक्ट कर सके और फैकल्टी को असाइन कर सके, सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स व्हिच हेल्प्स in basically analyzing the set of requirements, or better understanding the problem that you are going to solve. अच्छा जी, और मॉडलिंग का जो दूसरा फेज था, इट वाज जो हमने पीछे जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क की एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, उसके अंदर मॉडलिंग की 2 मेन फेजेस थे. वन वाज एनालिसिस एंड द अदर वाज डिज़ाइन. तो डिज़ाइन एक्चुअली क्या करता है, एज आई टोल्ड यू इन दैट स्लाइड एज वेल, कि डिज़ाइन बेसिकली गेट्स द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव गैदर्ड, ओके, और उसको आप फाइनली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाना शुरू करते हैं. ठीक है, तो डिज़ाइन शुड बी द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट. जिस तरह आपके घर का जब आर्किटेक्चर बनता है, तो उस दैट आर्किटेक्चर इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ योर हाउस, बिकॉज वंस द हाउस इज फिनिश्ड देन दे शुड मैच. ओके, सो जो आपका डिज़ाइन होता है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को और आपकी बिजनेस और टेक्निकल नीड्स को ब्रिज करता है. ओके जी. सेकेंडली, इट क्रिएट्स अ मॉडल दैट प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट सॉफ्टवेयर डाटा स्ट्रक्चर्स. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब डिज़ाइन को आप लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे चले जाते हैं, या जब आप डिटेल डिज़ाइन की बात करते हैं, तो वी यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर डिज़ाइन, then we will go down to maybe the component design, then we'll identify different classes, and when we are defining different classes, then we basically want to be sure that what will be the data structure of each class. Okay, and then within classes, if we have different functions, let's say, then we want to know if there are certain special algorithms that you have developed for certain problems. Let's say for timetable, making the timetable for a certain university or a certain department of a university, you have defined your own algorithm. Then you need to also document that algorithm or write the pseudocode of that algorithm, that what the algorithm or how it will look like. Okay, now there's a brief introduction of architecture design here. We will have whole lecture on designing, and we'll spend more time on architecture design, but this is just so that you guys know the flavor that what these terms mean when we look at those processes, those process models. So architecture design means that it represents the structure of the data and program components that are required to build the software. So there are 2 keywords here: structure of data
and the program components. As I told you कि जो higher level of abstraction के ऊपर आपके you have these components, and maybe when you go in detail, then you should know your structure of your data as well. Okay जी. The next is user interface design. As I told you कि जब आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ली तो उस वक्त हो सकता है कि आपका इंटरेक्शन बहुत कम लोगों से हो, लेकिन जब आपका सोल्यूशन किसी जगह पर चल रहा होता है, ठीक है, तो उस वक्त उसको बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर इसकी छोटी सी एग्जांपल आप ये देखें कि ये जो ईमेल्स आप यूज़ करते हैं, याहू मेल या गूगल मेल या हॉट मेल, देयर आर मिलियंस ऑफ यूजर्स हु आर यूजिंग इट. ओके, नाउ द यूजर इंटरफेस दैट दे हैव मेक, दे बेसिकली थॉट अबाउट इट अ लॉट. ठीक है, बिकॉज दोज वर देयर ओन प्रोडक्ट्स, मे बी दे डिड लॉट ऑफ यूजर सर्वेज जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने यूजर इंटरफेस को डिज़ाइन किया, लेकिन स्टिल दे डिडंट गो टू एवरी सिंगल पर्सन और उससे उन्होंने ये नहीं पूछा कि जी आप कैसा चाहते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा हो. ठीक है, सो यूजर इंटरफेस जब आपने डिज़ाइन करना है तो जो आपके पास सैम्पल है कस्टमर्स का जिससे आपने रिक्वायरमेंट्स ली हैं, तो यू शुड नो योर यूज़र कि किस किस तरह के लोग मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आपने यूज़र इंटरफेस बनाना है तो आपने उनके बारे में सोचते हुए यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है. ठीक है, कि कितने बटन होने चाहिए, कितनी फील्ड्स होनी चाहिए. ठीक है, और फिर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सेकेंड इज द कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन. एज आई टोल्ड यू कि कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि वी आइडेंटिफाई द डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स आप इसमें कैसे कम्युनिकेट करेंगे. वी डू ऑल दीज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं यूनिवर्सिटी के सोल्यूशन का आपको बार बार कह रहा हूँ, तो मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सिटी के सोल्यूशन में लेट्स से हमने पूरा एक कंपोनेंट बना दिया जिसे हमने कह दिया कि ये हमारा अकाउंट्स का कंपोनेंट है. ठीक है, एक हमने बना दिया जिसे हमने कह दिया कि ये फाइनेंस का कंपोनेंट है. ठीक है, अब ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये किसी आपस में लिंक होंगे. ठीक है, जिस तरह अकाउंट्स का कंपोनेंट जो है आपका वो फाइनेंस के साथ लिंक होगा. इसी तरह आप कहते हैं कि जी हमारा एक एडमिशन का एक और कंपोनेंट है. अब ये जो एडमिशन का कंपोनेंट है ये भी अकाउंट से लिंक होगा. तो ये जो कंपोनेंट डिज़ाइन के अंदर हम एक तो इनके अंदर का डिज़ाइन है कि एडमिन कैसे चलेगा, इसके अंदर कितनी क्लासेस आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, इसके क्लासेस का डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होंगे. फिर एक कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन होता है कि आपको इन कंपोनेंट्स की आपस में इंटरेक्शन को भी डिज़ाइन करना होता है कि एडमिन अकाउंट के साथ कैसे कनेक्टेड है, अकाउंट फाइनेंस के साथ कैसे कनेक्टेड है, या HR के साथ अकाउंट्स और फाइनेंस कैसे कनेक्टेड है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो you basically, and component level design, you not only worry about the internal design of the components, but you also need to consider how different components will interact with each other. Now we will look at different traditional process models. So the first one in these traditional process, why I'm calling them traditional, because these are the very basic process models. We will see what process models are used mostly in the industry these days, and sadly these traditional process models, although their activities are the generic activities that we have seen, that communication, planning, design, construction and deployment, they are present in all those new process models, but some of these process models, they are not used a lot in industry. We'll see why and we'll see how. We'll basically try to identify what are the pros and what are the cons of these different process models. Okay ji, so why we call it a process model? So what a process model does is it basically defines a distinct set of activities, as I already told you कि आप activities identify करते हैं जिनको आप और आप milestones identify कर लेते हैं, और उन milestones की basis के ऊपर आप work product, जिस तरह requirements का आपने requirement gathering की आपने 5-6 activities बना ली. ठीक है जी, कि सबसे पहले आप गए, आपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, दैट्स वन ऑफ द एक्टिविटी. देन सेकंड एक्टिविटी कि आप जाते हैं और आप फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं. थर्ड एक्टिविटी इज़ कि आप HR से जाके रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं. फोर्थ इज़ कि आप एडमिशंस के पास जाके रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं. नाउ दीज आर 4-5 एक्टिविटीज़. ओके जी, और आपने कह दिया कि पहला 1 महीना आपने रखा हुआ है जिसके अंदर आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है. तो आपका माइलस्टोन क्या होगा कि 1 महीने के बाद आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ जानी चाहिए, और इन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर आपका वर्क प्रोडक्ट क्या बन गया, वर्क प्रोडक्ट बन गया आपका सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बन गया जिसके अंदर आपने सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं. सो अ प्रोसेस मॉडल, वी डिफाइन अ प्रोसेस मॉडल एज के अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज, दैट्स व्हाट अ प्रोसेस मॉडल डिफाइंस. ठीक है जी, सो अ प्रोसेस मॉडल डिफाइंस अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज, एक्शंस, tasks, milestones and work products that are required to engineer high quality software. ठीक है जी, और वन थिंग इज वेरी क्रिटिकल, जो सेकंड पॉइंट है
कि ये जो हम एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है जी, ये एक्टिविटीज़ उन्हीं में से निकलेंगी, वो जो हमारी 5 जेनेरिक एक्टिविटीज़ थी ना, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, डिज़ाइन, इन्हीं को हम सब डिवाइड करते जाएंगे और इन्हीं को हम विल फर्दर ब्रेक देम डाउन एंड देन वी विल गेट दोज एक्टिविटीज़. सो ये एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ कैन बी लीनियर, these activities can be incremental or they can be evolutionary. We will see what these terms mean in the following slides. ठीक है जी. Okay जी, the first of this traditional process model is the waterfall model. पहली बात तो ये है कि हम इसको वाटरफॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसका अगर फ्लो देखें तो एक ये वाटरफॉल की तरह का है कि ऊपर से जिस तरह वाटरफॉल के अंदर पानी नीचे आ रहा होता है, तो इट लुक्स लाइक अ वाटरफॉल. ओके जी. नाउ अगेन इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, तो वही 5 जेनेरिक एक्टिविटीज़ हैं. वी हैव कम्युनिकेशन, वी हैव प्लानिंग, वी हैव मॉडलिंग, वी हैव कंस्ट्रक्शन एंड वी हैव डिप्लॉयमेंट. ठीक है. और कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप इस बॉक्स के अंदर देखें तो इट्स रिटन के यू इनिशिएट द प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड यू गैदर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि आप रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और आप उनकी बेसिस के ऊपर. अच्छा, वन थिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग and you guys should have noticed in this waterfall model is कि the assumption here is कि आपने एक दफ़ा requirements जब gather कर ली, ठीक है, तो आप दोबारा पीछे नहीं जा सकते. ठीक है. there is no mechanism कि आप customer, for example, now what usually happens in the industry is कि customer आपको एक दफ़ा requirement बताएगा, ठीक है, और आप बनाना शुरू करेंगे तो customer will come back again and they will say जी I want something new. And this is the very normal practice कि customer जब तक आप deploy नहीं कर देते, customer might call you. Even when you deploy the solution, customer would ask for something new in the product. ठीक है. So this is a very obvious problem with the waterfall model कि there is no feedback. ठीक है. कि जब आपने requirements एक दफ़ा दे दी तो you cannot change them. ठीक है. This is a very very obvious problem with this waterfall model कि you cannot go back. ठीक है जी. और दिस इज़ नॉट द वे थिंग्स वर्क इन इंडस्ट्री, क्योंकि यू हैव टू बेसिकली टेक द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इन द एंड ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू पे यू. ठीक है. सो इफ यू डोंट बिल्ड what he wants you to build, then there is no use of actually making it. Okay. So again, requirements तो एक बात थी. Once you have made a plan, जब आपने प्लान कर लिया, यानी कि प्लानिंग के अंदर हमने क्या किया, एस्टिमेशन की, स्केजुलिंग की और ट्रैकिंग की. ट्रैकिंग से मुराद है कि आप ट्रैक करते हैं कि आप स्केजुल के मुताबिक जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे. फॉर एग्जांपल आपने महीना रखा था रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए, तो आप एक महीने के वक्त आप देखेंगे जब महीना पूरा होगा कि आप किस स्टेज के ऊपर है. तो अगर आप ऑन स्केजुल चल रहे हैं तो उसका ये मतलब होगा कि आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं. और अगर आप ऑफ स्केजुल होंगे, यानी कि आप लेट होंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स अभी तक नहीं बनी. ठीक है. तो अगेन अब यहाँ पे असम्पशन क्या है कि आप प्लानिंग से पीछे नहीं जा सकते. आपने एक दफ़ा प्लान कर लिया तो उस प्लान को आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. विच इज़ अगेन रॉन्ग, क्योंकि बहुत से दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम कि आपको रीप्लान करना पड़ता है. ठीक है. यहाँ अपने प्लान को एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है. क्योंकि देयर कैन बी वेरियस थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सर्टन रिसोर्सेज आर वर्किंग ऑन सर्टन थिंग्स एंड ही वॉज अ की रिसोर्स, ही और शी, लेट्स से, and assuming that they left, okay, then the activities that you assign to that resource, those activities might get delayed. Okay, and you might have to adjust your plan to actually reflect that कि ये वाला काम क्यों लेट हुआ था. ठीक है. लेकिन आप अपने प्लान को भी चेंज नहीं कर सकते. once you have made the plan, then you cannot change it. ठीक है. इसी तरह फिर आपके प्लान की बेसिस के ऊपर हम अपना मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर हम एनालिसिस और डिज़ाइन करते हैं. इसके अंदर भी हमारी असम्पशन यही है कि आपने जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी उनकी बेसिस के ऊपर आपने डिज़ाइन किया और उनकी बेसिस के ऊपर आपने अपना कोड बनाया, कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ गए और अगेन कंस्ट्रक्शन से आपने डिप्लॉयमेंट कर दिया. और द असम्पशन हियर इज़ कि इट्स अ हैप्पी एंडिंग देयर. ठीक है. दैट यू स्टार्टेड बेस्ड ऑन गिवन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स विच नेवर चेंज. ओके. दिस इज़ एन आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो कि आपको सारी रिक्वायरमेंट्स शुरू में ही पता लग जाए, बिकॉज दैट नेवर हैपन्स. ठीक है जी. तो अगर तो ऐसा हो जाए कि यू गेट टू नो ऑल द रिक्वायरमेंट्स एट द बिगिनिंग, तो दिस इज योर लाइफ वुड बी यू शुड फील दैट यू आर इन हेवन. ठीक है जी. क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू नो कि व्हाट कस्टमर वांट्स. और अगर कस्टमर इतना श्योर है कि वो आपको बता दे कि जी यही रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए और बस दैट्स इट, अब मैं आपसे तब मिलूंगा जब आप डिप्लॉयमेंट कर देंगे, हमारे पास आएंगे, तो दैट्स एन आइडियल सिचुएशन. ठीक है. लेकिन दैट नेवर हैपन्स. ठीक है. क्योंकि ये चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड हैं. फॉर एग्जांपल, आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ और कस्टमर ने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी. ठीक है. जब कस्टमर ने रिक्वायरमेंट चेंज की
तो आपको प्लान भी दोबारा करना है, ठीक है, क्योंकि नई रिक्वायरमेंट्स आ गई, आपका प्लान चेंज हो गया, ठीक है, और आपको डिज़ाइन भी दोबारा से करना है। अब ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी चेंज चाहती है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी रिक्वायरमेंट्स जो कि पूरे आपके सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर ही चेंज कर दें, ठीक है, इट कैन हैपन। और देयर कैन बी रिक्वायरमेंट जो कि छोटी सी फंक्शनैलिटी को चेंज करें। अब इसके अंदर तो असम्पशन ये है कि हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट्स के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज हो तो द प्रॉब्लम विल प्रोपेगेट, इट विल प्रोपेगेट फ्रॉम प्लानिंग टू मॉडलिंग एंड फ्रॉम मॉडलिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली फ्रॉम मॉडलिंग टू डिप्लॉयमेंट, यू नो, सो द प्रॉब्लम बेसिकली प्रोपेगेट्स in these. So what is the biggest problem in this waterfall model is that you cannot go back, ठीक है, and important thing to understand is that never happens in industry, because अगर if you have, you know, even it, you know, you can look at your projects, you know, at times when you're doing your projects your teacher might come back and say no I want this thing as well in the project, ठीक है, तो this is a change in requirement, ठीक है. Now usually in case of semester projects that never happens, but when you go in the real life and when you actually go in the industry, then the common norm is that you basically decide a deadline, और उस deadline तक आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स की चेंजेस एक्सेप्ट करते रहते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी दैट्स इट, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी चेंज इन द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स को आप हर वक्त ही चेंज होना एक्सेप्ट करते रहें तो फॉर एग्जाम्पल आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं और कस्टमर कहते हैं जी नई रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है, तो नो दैट इज़ नॉट आइडियल। तो आपको एक डेडलाइन डिसाइड करनी होती है जो कि आप अपने प्लान के अंदर या जो आपने स्केड्यूल बनाया उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने इस दिन तक कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट करते रहेंगे, ठीक है जी। तो वाटरफॉल मॉडल क्या कहता है कि यू कैन नॉट गो बैक, यू हैव रिक्वायरमेंट्स, उसकी बेस के ऊपर आप प्लान करते हैं, उस प्लान की बेस के ऊपर आप मॉडल करते हैं और उस मॉडल की बेस के ऊपर आप कोडिंग करते हैं और अपनी टेस्टिंग करते हैं एंड फाइनली यू डिप्लॉय दैट। अच्छा जी, a few things about waterfall model कि this is the oldest software life cycle model or the software process model. One thing that you should acknowledge is because this was the first process model and the activities that are defined here, communication, planning, modeling, these are used in all the other process models. So this has लॉट, यू नो, ये जो बेस होती है उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है इस पूरी एरिया के अंदर, क्योंकि अगर ये प्रोसेस मॉडल शायद ना आता तो बाकी प्रोसेस मॉडल्स आप नहीं डिज़ाइन कर सकते थे, जो इंक्रीमेंटल है, प्रोटोटाइपिंग है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इवन दिस हैज़ सर्टन प्रॉब्लम्स, ठीक है, लेकिन इट हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। अच्छा जी, और एज आई हैव टोल्ड यू द सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड एंड रिस्क इज़ लो, ठीक है। वेल अंडरस्टूड तो इनफैक्ट नहीं, आपको यू शुड बी 100% श्योर कि आपकी रिक्वायरमेंट सही होंगी, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू चेंज दैम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी आपको रिक्वायरमेंट्स पहले से सारी पता होनी चाहिए। और द वर्क फ्लो इज़ लीनियर, ये वो वाली लाइन जब आ रही है जो प्रोसेस मॉडल को जब हमने डिफाइन किया था, तो आई टोल्ड यू कि अ प्रोसेस मॉडल कैन बी लीनियर, इट कैन बी इंक्रीमेंटल एंड इट कैन बी एवोल्यूशनरी। तो लीनियर कौन सा प्रोसेस मॉडल है? दिस वाटरफॉल मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मॉडल। क्या आप लीनियर, हम इसको क्यों कह रहे हैं कि जो इसका फ्लो है दैट इज यू नो लाइक दैट, आप शुरू से यहाँ से शुरू हुए, यहाँ पे आपने कह दिया, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने एंड कर दिया, आपने कहा हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो दिस इज लीनियर। अच्छा जी, यूज्ड ऑफन व्हेन वेल डिफाइंड एडेप्टेशंस और एनहांसमेंट टू करेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस टेल्स यू कि जो वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल होता है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यूज ना हो, ठीक है, ऑल्दो इट्स वेरी रेयर दैट इट इज यूज्ड, लेकिन इट कैन बी यूज्ड। और इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट का नया वर्जन निकाल रहे हैं, ठीक है, और इट्स बेसिकली योर प्रोडक्ट, और आपको पता है कि आपने अब रिक्वायरमेंट शुरू में आइडेंटिफाई कर ली कि इस वाली रिलीज के अंदर, जिस तरह आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखी होंगी, इनके डिफरेंट रिलीजेज आते हैं, ठीक है, तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि इस रिलीज के अंदर मैंने ये नए फीचर्स डालने हैं, ठीक है। तो इन दैट केस you know your requirements at the beginning, and on the basis of those requirements you plan, you model, you construct, and then you deploy, ठीक है जी। तो in that case you can use this waterfall model, ठीक है। So the basic line is that you would use the waterfall process model when you are very sure what the requirements will be, ठीक है, or the requirements are very well understood. Okay जी, now problems. Waterfall model has lots of problems. It doesn't support iteration, ठीक है जी, और सो द चेंजेस कैन कॉज कंफ्यूजन,
ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपको नई रिक्वायरमेंट्स बता दी, लेकिन आपको तो प्रोसेस मॉडल से सपोर्ट ही नहीं करता, तो कस्टमर अब कुछ और चाह रहा है लेकिन आप कुछ और बना रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज कंफ्यूजन। द सेकेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट which says that it is very difficult for customers to state all the requirements explicitly and upfront। आपको वो पिछली फर्स्ट लेक्चर की वो डायग्राम याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कस्टमर को बहुत से केसेस के अंदर पता ही नहीं होता कि व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग यू टू मेक, ठीक है जी। तो इट्स योर जॉब टू हेल्प कस्टमर टेल यू कि ये उसके प्रोसेस मॉडल है, वो जब आपसे जो प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे हैं उसके अंदर वो ये चाहते हैं, ठीक है। तो कस्टमर के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स को शुरू में ही बता देना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके जी। नाउ द सेकंड इज it requires customer patience because the working version of the program doesn't occur until the final phase, ठीक है जी। अब ये क्योंकि ये एक लीनियर प्रोसेस मॉडल है, ठीक है, और उस लीनियरिटी के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ली थी, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर आपने प्लान किया था, उसकी बेस के ऊपर आपने डिज़ाइन किया और उसकी बेस के ऊपर आपने कोडिंग की और यहाँ पर आपके कहीं डिप्लॉयमेंट आ गई। तो अब कस्टमर ने यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी थी और अगर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन लेट्स से 2 साल है तो कस्टमर को कुछ नहीं पता कि उसके प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है। आप 2 साल बाद कस्टमर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे जी ये मैंने बना लिया, ठीक है, और इन 2 साल के पीरियड में हो सकता है कस्टमर अपना इंटरेस्ट ही लूज कर दे उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि कस्टमर और आपके दरमियान इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ओके जी। और दीज प्रॉब्लम्स कैन बी समवट एलिविएटेड। अच्छा, एक वाटरफॉल का ना ये जो लास्ट लाइन है, वाटरफॉल के एक नया वर्जन भी है जिसके अंदर क्या किया गया कि फीडबैक लूप्स डाल दिए गए हैं, ठीक है। ये फीडबैक लूप्स बेसिकली क्या करते हैं कि इसके अंदर आप देखें हम कि हर स्टेज से पिछली स्टेज के अंदर एक लूप जा रहा है, ठीक है। और ये लूप क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये कहता है कि जी आपने रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की, प्लान किया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपका नई रिक्वायरमेंट्स आ जाए तो लूप वापस जा रहा है कि आप दोबारा से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मॉडलिंग की फेज से आप देखें कि प्लान के अंदर भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है जो कि आगे रिक्वायरमेंट्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फीडबैक लूप्स हैं दे बेसिकली हेल्प यू नो मैच और गो बैक टू द प्रीवियस स्टेज, और उस प्रीवियस स्टेज पे अगर कोई नई इनपुट आई है तो इट हेल्प्स यू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर सोल्यूशन एज वेल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कंफ्यूजन ये है कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल गो अराउंड इन दीज लूप्स, ठीक है। ऑल्दो इट सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, जिस तरह इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने कोई बहुत ही क्रिटिकल रिक्वायरमेंट बना दी है जिसकी वजह से आपका प्लान, आपका मॉडल चेंज हो रहा है, तो हो सकता है आप जब इस लूप में यहाँ जाएं आपको पता लगे देयर आर न्यू रिक्वायरमेंट्स, तो आप उनको अपने सोल्यूशन के अंदर ऐड कर लें, ठीक है। बट देन अगेन देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स जिस तरह फॉर एग्जांपल जो वो वाला प्रॉब्लम है कि यू विल बेसिकली बी डिस्टेंट फ्रॉम द कस्टमर, कि कस्टमर को सोल्यूशन नहीं मिल रहा आखिर तक, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टेज है उसके अंदर हो ही ये रहा है कि आप रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और सोल्यूशन कहीं यहाँ पे जाके बन रहा है और यहाँ पे जाके आप डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर दैट कस्टमर वुड हैव टू टेक, ऑल्दो ये फीडबैक लूप्स कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कुछ प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व करता है, मैंने आपको बताया कि अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं आ गई तो आप उसकी बेस के ऊपर प्लान को चेंज कर सकते हैं और प्लान की फिर बेस के ऊपर आप मॉडल अपनी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं और शायद फिर आप अपनी कोडिंग को भी चेंज कर सकें। ओके जी। द नेक्स्ट प्रोसेस मॉडल इज इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू कि अगर आप इन 5 एक्टिविटीज़ को देखें, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये 5 की 5 एक्टिविटीज़ वही हैं जो कि जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर थी या जो आपके वाटरफॉल मॉडल के अंदर थी, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इट्स रिटन इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2 एंड इंक्रीमेंट 3, एंड ईच ऑफ दीज इंक्रीमेंट्स अगर आप इन 2 इंक्रीमेंट्स को छुपा दें तो जो पहली वाली इंक्रीमेंट है इट इज़ बेसिकली द बेसिक वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। लेकिन इसको इंक्रीमेंट व्हाट इज एन इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट इज कि फॉर एग्जांपल यू हैव 20 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वांट टू डू, ठीक है, you have 20 different things that you want to do. Now you sit down with your customer and you decide कि out of those 20 different things what are the first things or what are the most important things that the customer wants from you. Okay, for example customer कहता है let's say okay जी, now what is an increment? Let's say you have 5 increments,
और 5 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल सिट डाउन विद योर कस्टमर और आप अपने कस्टमर से कहते हैं यार मुझे बताएं कि आपको इस रिक्वायरमेंट में से पहले कौन सी चीज़ चाहिए। लेट्स से कस्टमर सेज कि जी R2 एंड R5 और द रिक्वायरमेंट्स विच आई वांट फर्स्ट और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ये अगर आप मुझे दे दें तो मेरा कुछ काम चलना शुरू हो जाएगा। लेट्स से कस्टमर आपसे ये कहता है, तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि जो मैंने पहला इंक्रीमेंट देनी है, ठीक है। अब पहली इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि आप सॉफ्टवेयर को डिफरेंट टुकड़ों में बना रहे हैं, ठीक है। तो आप कस्टमर को कहते हैं कि जो पहले मैं आपको टुकड़ा में बनाऊंगा वो मैं R2 और R5 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कम्युनिकेशन के अंदर ना तो सिर्फ नॉट ओनली यू हैव आइडेंटिफाइड द रिक्वायरमेंट्स बट यू हैव आइडेंटिफाइड कि विच रिक्वायरमेंट्स यू आर गोइंग टू डू फर्स्ट। सो लेट्स से आप कहते हैं जी इस इंक्रीमेंट के अंदर मैं R2 और R5 कर दूंगा। तो अब आप प्लान भी इसी की बेस के ऊपर करेंगे। आपको प्लान भी सिर्फ इन 2 रिक्वायरमेंट्स के लिए करना है, आपको मॉडल भी इन्हीं 2 रिक्वायरमेंट्स के लिए करना है और कोडिंग भी इन्हीं 2 रिक्वायरमेंट्स के लिए करनी है, ठीक है। और आप कस्टमर को डिप्लॉय भी कर देंगे। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इंक्रीमेंटल के अंदर आफ्टर ईच इंक्रीमेंट द कस्टमर एक्चुअली नोस के व्हाट यू आर मेकिंग। सो जो इंटरेक्शन वाला प्रॉब्लम था वाटरफॉल के अंदर वो इसको टोटली कैटर कर लेता है इंक्रीमेंटल मॉडल कि यू हैव अ वेरी क्लोज इंटरेक्शन विद द कस्टमर, ठीक है जी। तो आपने कस्टमर से R2 और 5 पहले इंक्रीमेंट में बना दिया, उसके बाद आपने अगली 2 रिक्वायरमेंट्स ले से कस्टमर ने कहा जी R3 और R4 चाहिए, तो आपने कहा कि जी सेकंड इंक्रीमेंट जो मेरी होगी वो R3 और R4 की होगी और आखिरी इंक्रीमेंट मेरी R5 की होगी, ठीक है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन एन इंक्रीमेंटल मॉडल ईच इंक्रीमेंट इज बेसिकली अ वाटरफॉल मॉडल। जब आप एक इंक्रीमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं करते, यू विल ओनली फोकस ऑन सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इफ द कस्टमर वांट्स अ चेंज तो वो आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जांपल R2 और R5 आपने इंक्रीमेंट 1 के अंदर कर लिए, लेकिन कस्टमर सेड कि जी आई वांट सर्टेन चेंजेस इन रिक्वायरमेंट 2, और आप फिर जब इंक्रीमेंट 2 देंगे तो मे बी यू इंक्लूड R2 हियर एज वेल, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ईच इंक्रीमेंट इन द इंक्रीमेंटल मॉडल इज बेसिकली वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ क्या है कि जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है ये इन डिफरेंट इंक्रीमेंट्स को छोटे छोटे टाइम के भी चंक्स में, अब जब आप सॉफ्टवेयर टुकड़ों में दे रहे हैं तो आपका लेट्स से ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइम 2 साल था, तो आपने एज्यूम किया कि हमारे पास 3 इंक्रीमेंट्स थी, तो आपकी जो हर इंक्रीमेंट होगी वो तकरीबन 8-8 महीने की होगी, तो 8 महीने की आपके पास 3 इंक्रीमेंट्स आ गई, ठीक है। अब जब आपका टाइम भी डिवाइड हो गया तो चीज़ें मैनेजेबल हो गई और हर 8 महीने के बाद कस्टमर को एक वर्किंग चीज़ भी मिल रही है। लेकिन ये जो टाइम्स है ये फिक्स नहीं होते, फॉर ईच इंक्रीमेंट यू डिसाइड कि आप कितनी देर में ये करेंगे, ठीक है। तो यू कैन से कि जी आई विल डू दी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन लेट्स से 2 मंथ्स, और किसी एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आप ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन ये इंक्रीमेंटल मॉडल का फ़ायदा क्या होता है कि आप कस्टमर से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, कस्टमर के अंदर कस्टमर ने कोई नई रिक्वायरमेंट्स लाता है आप उनको भी डाल रहे हैं, तो it basically addresses a lot of the problems that we saw or we identified in the waterfall model. The few of these, this description about the incremental model, it is used when the requirements are well understood. Again, we are saying well understood. Now here well understood means that the customer knows what is the priority of different requirements. ठीक है, क्योंकि आपने जब इंक्रीमेंट्स डिसाइड करनी है कि कौन सी इंक्रीमेंट में क्या बनाना है, वो इस प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर बनाना है कि जो हाईएस्ट और द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स आप वो पहले करें, एंड सो एंड सो फोर्थ। और मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिलीवरेबल्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मैंने जिस तरह बताया कि हर इंक्रीमेंट के आखिर में आपके पास एक नया डिलीवरेबल आता है। सो व्हेन यू आर डिजाइनिंग, इसके अंदर ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आपने पहली दफ़ा जब अपने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया है तो वो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि आप नई चेंजेस उसके अंदर इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकें, क्योंकि जब आपने नई इंक्रीमेंट बनानी है तो आपने जो पहली वाली चीज़ें बनाई थी वो भी चलनी चाहिए और दूसरी वाली भी चलनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और अगेन वर्क फ्लो इज़ लीनियर इन ईच इंक्रीमेंट, यानी कि हर इंक्रीमेंट के अंदर आपका फ्लो लीनियर है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर जो बेसिकली इंक्रीमेंट है दैट इज एसेंशियली अ वाटरफॉल मॉडल, और इट्स एन आइटरेटिव नेचर। तो इसका क्या मतलब है कि आप हर इंक्रीमेंट में एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, कस्टमर इज सेटिस्फाइड। अच्छा जी, ओके जी। द नेक्स्ट प्रोसेस मॉडल इज द प्रोटोटाइपिंग मॉडल। बिफोर वी एक्चुअली गो इन डिटेल and see what a prototype model is, let me tell you what a prototype is. Prototype is a sample solution, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले ली, ठीक है, और आपने जितनी रिक्वायरमेंट्स भी इकट्ठी की
उसकी बेसिस के ऊपर आपने जल्दी से एक प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दिखा दी, तो दैट इज़ अ प्रोटोटाइप, ठीक है। और उस प्रोटोटाइप को आपने क्या किया, उस प्रोटोटाइप को आपने यूज़ किया बेसिकली कस्टमर से नई रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए, ठीक है। यानी कि आप करते क्या है कि जो आपको इनिशियली कस्टमर ने चीज़ें बताई उनकी बेसिस के ऊपर आपने एक प्रोडक्ट बना ली, ठीक है, और आपने उसको लेबल दे दिया कि दिस इज़ अ प्रोटोटाइप, क्योंकि ये वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप एक सैम्पल चीज़ बना लेते हैं और वो सैम्पल आप कस्टमर के पास ले जाते हैं। ये बड़ा इसी तरह सिंपल है कि कोई आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि पहले एक दो सैम्पल्स बना लेते हैं और यू टेक इट टू द कस्टमर, और अगर कस्टमर कहता है कि जी ये चीज़ सही है, तो देन यू एक्चुअली गो ऑन एंड फाइनलाइज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम था, ये पिछले दोनों प्रोसेस मॉडल के अंदर आपने एक लाइन देखी होगी, जो पहली लाइन थी उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर कि द रिक्वायरमेंट शुड बी वेल अंडरस्टूड, ठीक है ना। प्रोटोटाइप के अंदर असम्पशन यही है, और दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री कि कस्टमर दे डोंट नो व्हाट दे वांट, ठीक है, और उनसे रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करना, when you actually go to the customer and bring out the requirements from the customer, this is very difficult, ठीक है जी, कि कस्टमर से आइडेंटिफाई कराना कि उसे चाहिए क्या। तो ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल की जो assumption यही है कि ये जो प्रोटोटाइप आप बनाते हैं, ये प्रोटोटाइप आप बनाते ही इसलिए हैं कि जब आप कस्टमर को ये ले जाकर दिखाएंगे तो कस्टमर उसकी बेस के ऊपर आपको बताएगा कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, वो ये नहीं चाहता था, वो किसी और तरह से चीज़ चाहता था, ठीक है। तो अगर आप भी कंफ्यूज है, कस्टमर भी कंफ्यूज है, तो मे बी वाटरफॉल मॉडल इज द बेस्ट वे टू गो, क्योंकि आप एक छोटी सी जल्दी से प्रोटोटाइप बनाएंगे, यू विल टेक इट टू द कस्टमर, कस्टमर विल से जी नहीं जी आई वांट सर्टेन थिंग्स चेंज्ड, ठीक है। इसकी एक बड़ी मज़े की एग्जांपल मैं दूं कि आई वाज टीचिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 और मेरा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था, दे वांटेड टू डू अ रियल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दे वेंट इन अ गेस्ट हाउस और वहाँ पे जाके उन्होंने उनके ओनर से कहा जी हमें आप रिक्वायरमेंट्स दें। वो बंदा परेशान हो गया क्योंकि ही वाज नेवर हर्ड दिस वर्ड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। ही वाज अ रिच गाय हु हैज़ अ गेस्ट हाउस, लेकिन ही वाज नॉट टेक्निकल एट ऑल, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट गाय सेड वाज कि आप मुझे कुछ ला कर दिखाएं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। So what that guy was looking for, he was basically looking for set of requirements कि आप उसको he was basically looking for a prototype कि आप उसको कोई चलता हुआ सोल्यूशन जाके दिखाएं जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपको बताएगा कि जी मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये इस तरह से होगा, ये उस तरह से होगा, ठीक है। तो prototyping is the best way to go when you are confused, your customer is confused and so you are confused, ठीक है। तो आप requirements gather करने के लिए एक prototype बना लेते हैं, ठीक है जी। So what usually you do is you basically again आप ये 5 एक्टिविटीज देखें वही हैं, you have communication, you have planning, you have modeling, you have construction and finally you have deployment, ठीक है। तो आप करते क्या है कि आपका जब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, यानी कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पर आप आ गए, तो आपके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप आ जाती है आपके प्रॉब्लम की, ठीक है। ये जो प्रोटोटाइप होती है दिस इज अ सेमी वर्किंग सोल्यूशन, और जो आपने इनिशियल रिक्वायरमेंट्स लिए उसकी बेस के चलता हुआ सोल्यूशन है, ठीक है। यू विल यूज इट टू क्लैरिफाई योरसेल्फ एंड द कस्टमर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और इन मोस्ट केसेस ये जो आप प्रोटोटाइप बना लेते हैं यू विल कॉल इट अ थ्रो अवे प्रोटोटाइप, यानी कि आप इसको फर्दर आप अपने डिज़ाइन, क्योंकि जब आप प्रोटोटाइप बनाते हैं तो उसके अंदर आप डिज़ाइन के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। इस डिज़ाइन के अंदर अगर आप देखें मॉडलिंग के अंदर इन दिस स्लाइड इट्स रिटन क्विक डिज़ाइन। Now what quick design means कि आपने डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, आपने अपने डिज़ाइन को बहुत फ्लेक्सिबल डिज़ाइन बनाने के लिए, क्योंकि when you want to design something which is flexible, ठीक है, जब आप फ्यूचर के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं जिसके अंदर आप चेंजेस बार बार कर सकें और वो चेंजेस को इजीली अपने अंदर इंकॉर्पोरेट करने दें, तो उस डिज़ाइन को करने में आपको टाइम लगता है। यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम कि आपने कौन सी क्लासेस बनानी है, ठीक है, और उन क्लासेस का डाटा स्ट्रक्चर कैसा होगा। जब आप फाइनल डिज़ाइन करते हैं तो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। लेकिन व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोटोटाइप तो हो सकता है आप एक ही क्लास के अंदर सब कुछ लिख दें, ठीक है। नो दैट माइट बी रॉन्ग, लेकिन आप दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप जब प्रोटोटाइप बनाते हैं तो यू डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एक्चुअली डिज़ाइनिंग। आप बस एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जो भी आपके पास आई उसके बेस के ऊपर आपने जल्दी से एक डिज़ाइन बनाया और आपने कोड किया और आप कस्टमर के पास ले गए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक डिज़ाइन। और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप कर रहे हैं।
और डिप्लॉयमेंट के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी एंड फीडबैक, क्योंकि ये हम प्रोटोटाइप बना ही इसलिए रहे हैं कि हम कस्टमर से फीडबैक लें कि कस्टमर चाहता क्या है। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्लानिंग है वो भी बड़ी क्विक है। ठीक है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन यहाँ पे थोड़ी सी है, हमें हैपहैज़र्ड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स मिला है जो कि बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हमने उसकी बेस के ऊपर जल्दी से प्लान किया है, देन ऑन द बेस ऑफ दैट प्लान वी हैव क्विकली डिज़ाइन द प्रॉब्लम, और उसके ऊपर हमने अपना कोडिंग स्टार्ट कर दिया, टेस्टिंग की, एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू डिप्लॉय, और इस डिप्लॉयमेंट की बेसिस के ऊपर हम फीडबैक लेंगे कस्टमर से। अच्छा जी, जो अब ये प्रोटोटाइप मॉडल है, इट्स अ मिक्सचर, ये मिक्सचर है एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल का। इसको हम एवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं? एवोल्यूशन का क्या मतलब? एवोल्यूशन का मतलब ये है कि आपकी एक चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है और आप नेक्स्ट चीज़ उससे बेहतर बना रहे हैं, आप उसको इवॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर नई चीज़ें डाल रहे हैं, यानी कि जो नेक्स्ट चीज़ बनती है वो पहली से बेहतर बन रही है, इवॉल्व हो रही है। दिस इज एवोल्यूशन। ठीक है। और जो आपकी आइटरेशन है, आइटरेशन का क्या मतलब होता है कि आपने एक साइकिल पूरा किया और आप दोबारा से एक और साइकिल जा रहे हैं, सामने आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल का। तो अब ये जो प्रोटोटाइप मॉडल है, इट हैज़ बोथ दोज थिंग्स। इट इज़ एवोल्यूशनरी क्योंकि आपने एक प्रोटोटाइप बनाई, और जो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे ऑब्वियसली दैट वुड बी अ लॉट बेटर देन दैट प्रोटोटाइप। और इंक्रीमेंटल क्यों कह रहे हैं कि आपकी एक इंक्रीमेंट है जिसके अंदर आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं, फिर जब आप अपना एक्चुअली प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर आप दैट्स मे बी द सेकंड इंक्रीमेंट। ठीक है जी। और अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड। सो ये पहला हमने प्रोसेस मॉडल देखा है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जब हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में वी आर नॉट श्योर एंड द कस्टमर इज नॉट श्योर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोटोटाइप का सबसे बड़ा, प्रोटोटाइप हम बनाते ही क्यों हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सो दिस बेसिकली द प्रोटोटाइप दैट यू मेक, दैट्स अ मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर। ओके जी। और जो फीडबैक होती है, ये जो आखिरी वाली लाइन, आखिरी वाला जो था कि फीडबैक, मैंने आपको कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फीडबैक की बेसिस के ऊपर आप अपने इस प्रोडक्ट को इवॉल्व करेंगे या बेहतर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अब ये प्रोटोटाइप के बहुत से, जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है प्रोटोटाइप का, वो ये है कि जब आप कस्टमर को एक चलती हुई चीज़ ला जाकर दिखा देते हैं, ठीक है, और कस्टमर इज़ नॉट वेरी लिटरेट अबाउट गुड डिज़ाइन, कि अच्छा डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, और ही कैन नॉट सी कि इसके अंदर नए फीचर्स कितनी आसानी से डल सकते हैं या नहीं डल सकते। हो सकता है कस्टमर विल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन ही सीज द प्रोडक्ट, ठीक है, और वो कहे कि जी ये तो आपने 2 महीने में मुझे बना कर दे दिया, तो आपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए 2 साल कैसे मांग रहे हैं? दिस कैन हैपन, ठीक है जी। और कस्टमर हो सकता है कि जी नहीं बस मुझे यही चाहिए, ठीक है। Now that can happen with somebody who is not very technical, ठीक है। तो this is one of the very basic or one of the very interesting problems कि जी कस्टमर को जैसे ही चलती हुई चीज़ नजर आई उसने कहा जी बस that's it, I want just that। अच्छा, एक जो सेकंड प्रॉब्लम है जो कि डेवलपमेंट की साइड के ऊपर है, विच इज़ बेसिकली एट योर साइड, अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये है कि जो आपके डेवलपर्स हैं वो एक्चुअली कोडिंग, वो क्योंकि आप अपने डिज़ाइन के बारे में सोच ही नहीं रहे, ठीक है, और आप जल्दी से बस प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो आप बहुत से कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, आपका डिज़ाइन जो होगा वो बहुत ही बेकार होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इवॉल्व कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप अपने डिज़ाइन को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, उस पुराने डिज़ाइन की बेस के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट ना बनाएं, ठीक है जी। और इसके अंदर जो लेसन्स लर्न है, ये लेसन्स इसीलिए हैं कि इसमें जो लेसन्स हैं वो 2 लेसन्स हैं स्लाइड के अंदर, आप देखें कि आप अपने प्रोटोटाइप के रूल्स शुरू में ही डिफाइन कर लें। यानी कि इसमें रूल डिफाइन करने का मकसद क्या है कि आप कस्टमर को भी बता दें कि वट एवर वी विल शो यू दैट विल नॉट बी अ फाइनल प्रोडक्ट एंड वी आर ओनली मेकिंग इट सो दैट यू नो कि वट आर द डिफरेंट फीचर्स दैट यू वांट इन द प्रोडक्ट, ठीक है, और आप हमें और बता सकें कि आप इसमें क्या क्या चाहते हैं। तो आपने पहले ही रूल डिफाइन कर दिया कि जी ये अगर हमने आपको प्रोटोटाइप देंगे, दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, ताकि आपको कस्टमर वो पहले वाला प्रॉब्लम कहे ही ना कि जी बस अब आप डेवलपमेंट रोक दें। अच्छा जी, और सेकेंड चीज़ क्या है कि नॉर्मली दिस प्रोटोटाइप इज़ अ थ्रो अवे प्रोटोटाइप। आप इसको थ्रो अवे हम क्यों कहते हैं, या वाई शुड वी थ्रो इट अवे, क्योंकि हमने इस पर टाइम लगाया, लेकिन इसकी वजह क्या है कि वी से कि हमें वी शुड थ्रो दिस प्रोटोटाइप, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हम जो डिज़ाइन करते हैं वी डू नॉट स्पेंड सम टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम इन एक्चुअली डिज़ाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस प्रोटोटाइप की बेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को आगे ना लेकर चलें, बल्कि इस प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड करके या इसके डिज़ाइन को इम्प्रूव करके फिर इसको इवॉल्व करें, ठीक है। तो ओके जी,
नाउ द फाइनल ऑफ दीज ट्रेडिशनल और जो फोर्थ ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल इज द स्पाइरल मॉडल। ठीक है जी, इससे हम स्पाइरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आप अगर शक्ल देखें इस प्रोसेस मॉडल की तो एक ये स्पाइरल की तरह है, ठीक है, स्टार्ट होता है और इट बिकम समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। नाउ इन दिस अगेन अगर आप इस प्रोसेस मॉडल को देखें तो इसके अंदर वही 5 एक्टिविटीज़ हैं। यू हैव योर कम्युनिकेशन, यू हैव योर प्लानिंग, यू हैव मॉडलिंग, you have construction and you have deployment. अब this spiral model जो होता है, ये one thing that is very critical in this spiral model is risk assessment. ठीक है, अगर अब आप इसको यूजुअली जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है आप इसको 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं आमतौर पे। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आप क्या करते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आप जो आपकी डिफरेंट इंक्रीमेंट्स होती हैं आप डिसाइड करते हैं कि इस स्पाइरल के अंदर मैंने क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल आप इनर मोस्ट से स्टार्ट किया आपने, तो यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि जी अभी तो मैंने रिक्वायरमेंट्स लेनी है। ठीक है, लेकिन मे बी जब आप आउटर मोस्ट स्पाइरल के अंदर होंगे तो यहाँ पर आप मे बी फाइनल अपनी रिक्वायरमेंट्स को कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि इसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स नहीं लेंगे, यहाँ पे आप अपनी फाइनल चीज़ों को। तो जो स्पाइरल मॉडल है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एवोल्यूशनरी एंड इंक्रीमेंटल मॉडल अगेन। ठीक है, एक और चीज़ जो इसके अंदर बड़ी क्रिटिकल है और जो शायद इसको प्रोटोटाइप या इंक्रीमेंटल से डिफरेंशिएट करती है इस स्पाइरल प्रोसेस मॉडल को, वो ये होती है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कर रहे होते हैं, हर इंक्रीमेंट के अंदर आप रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे भी रिस्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इनर मोस्ट स्पाइरल के अंदर भी रिस्क कैलकुलेट किया, इसके अंदर भी रिस्क कैलकुलेट किया, इसके अंदर भी रिस्क कैलकुलेट किया। तो आप हर स्टेज के ऊपर टेक्निकल और उसका बिजनेस रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि जो आपने काम किया है इसके करने की वजह से आगे क्या रिस्क जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने जो डिज़ाइन किया है शुरू की इंक्रीमेंट का, उसका क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, तो आप हर स्टेज के अंदर रिस्क असेसमेंट करते हैं। ठीक है, और उस रिस्क असेसमेंट की बेसिस के ऊपर आप अपने सोल्यूशन को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नाउ यूजुअली दिस स्पाइरल मॉडल इज सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। ठीक है, वेरी लार्ज प्रॉब्लम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस रिस्क असेसमेंट में भी टाइम लगता है। ठीक है, और ये रिस्क असेसमेंट हम उन केसेस के अंदर करते हैं वेयर द सोल्यूशन इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ का रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि वेदर द डिज़ाइन दैट यू हैव मेड दैट इज राइट और द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो आपने क्या किया कि हर स्टेज के ऊपर आपने एक यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट डिफाइन की इन द लेफ्ट इन दिस क्वाड्रेंट, और जो आपका कम्युनिकेशन और प्लानिंग के बीच वाला क्वाड्रेंट बनता है इसके अंदर आपने रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की या अपनी नई इंक्रीमेंट डिफाइन की। फिर आपका प्लानिंग और मॉडलिंग के बीच के अंदर आपने रिस्क असेसमेंट किया, उस रिस्क असेसमेंट की बेस के ऊपर यू प्लान। ठीक है जी, फिर मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन के बीच में जो क्वाड्रेंट बन रहा है, इस क्वाड्रेंट के अंदर आपने उस मॉडल की बेस के ऊपर अपना प्रोडक्ट बनाई, और फाइनली आपने कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन के बीच में जो डिप्लॉयमेंट है आपने वो इंक्रीमेंट कस्टमर को दी, कस्टमर से फीडबैक ली और नई इंक्रीमेंट बनानी शुरू कर दी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज कि आपने क्योंकि आप हर स्पाइरल के अंदर, क्योंकि अब आप इसमें कर क्या रहे हैं कि आप हर स्पाइरल के अंदर रिस्क भी कैलकुलेट कर रहे हैं, उस रिस्क की बेसिस को सोचते हुए आप प्लान कर रहे हैं, और उस प्लान की बेसिस के ऊपर आप जब मॉडल कर रहे हैं और डिप्लॉय जब आप कर रहे हैं तो आप कस्टमर से फीडबैक भी ले रहे हैं। ठीक है, उस फीडबैक का क्या फ़ायदा है कि आप फीडबैक के 2 फायदे, एक तो फ़ायदा ये है कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट सही नहीं पसंद नहीं आती तो आपको बता देगा कि जी नहीं मेरी प्रोडक्ट के अंदर ये चेंजेस कर दें। ठीक है, दूसरा आपको फ़ायदा फीडबैक का क्या होगा कि कस्टमर आपसे ये कह देगा कि फॉर एग्जांपल उसको प्रोडक्ट पसंद तो आ जाती है लेकिन वो किसी फीचर को एक्सटेंड करना चाहता है, तो कस्टमर विल आल्सो टेल यू। ठीक है, यहाँ अगर कस्टमर को वो पसंद ही नहीं आती, वो कहेगा नहीं जी ये चीज़ निकाल दें। तो दिस फीडबैक इज इंपॉर्टेंट अगेन। तो लेकिन द क्रिटिकल फैक्टर विच इज डिफरेंट इन दिस प्रोसेस मॉडल फ्रॉम एवरी अदर प्रोसेस मॉडल इज द रिस्क असेसमेंट, कि आप हर स्पाइरल के हर फेज के अंदर हर स्पाइरल के अंदर बेसिकली आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। एक और चीज़ की जो स्पाइरल मॉडल का आउटर स्पाइरल होते हैं, या ये जो बाहर वाले हैं, दीज आउटर स्पाइरल्स, ये जिस तरह आउटर मोस्ट स्पाइरल है, ये वाले जो स्पाइरल्स होते हैं, ये हम इनको कहते हैं कि ये बिल्कुल वाटरफॉल मॉडल की तरह बिहेव करते हैं। वो क्यों करते हैं वाटरफॉल मॉडल की तरह बिहेव, क्योंकि इसके बाद ख़त्म हो रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ही ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, तो आप जो रिक्वायरमेंट्स लेंगे उसकी बेस के ऊपर जो प्लान करेंगे, जो डिज़ाइन करेंगे, जो कंस्ट्रक्ट करेंगे, फाइनली वो आप डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसके बाद चेंज नहीं आ रही। तो हम कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट स्पाइरल्स होते हैं स्पाइरल मॉडल के, वो वाटरफॉल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, अब स्पाइरल मॉडल क्या है? अगेन इट्स एन एवोल्यूशनरी अप्रोच कि आप हर दफ़ा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, हर दफ़ा प्रोडक्ट के अंदर नई चीज़ें डालते जा रहे हैं। और अगेन इट इज़ यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो दो हमने प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं, पहला वाला हमारा प्रोसेस मॉडल था वाटरफॉल मॉडल, दैट वाज लीनियर। सेकंड प्रोसेस मॉडल वाज इंक्रीमेंटल, नेम से जैसे कि वो इंक्रीमेंटल था। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग और स्पाइरल मॉडल जो हैं ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स हैं। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के अंदर हमारे वाई वी यूज देम कि जब रिक्वायरमेंट्स दे आर नॉट वेल अंडरस्टूड। ठीक है जी, तो दिस यू शुड रिमेंबर। अच्छा, अब जो इनर स्पाइरल्स होते हैं आपके स्पाइरल मॉडल के अंदर, उनके अंदर हम क्या करते हैं, दे आर बेसिकली द फोकस इज और द फोकस शुड बी ऑन आइडेंटिफाइंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोजेक्ट रिस्क। ठीक है, और हो सकता है कि स्पाइरल के अंदर भी आप प्रोटोटाइपिंग करें। अगेन एक चीज़ प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में आई शुड टेल यू कि प्रोटोटाइप जब आपने एक दफ़ा बना ली है तो उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी प्रोसेस मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने प्रोटोटाइप दे दी, उसके बाद हो सकता है आप इंक्रीमेंटल के ऊपर आ जाएं। ठीक है, इसी तरह वो आपने प्रोटोटाइप दे दी, उसके बाद हो सकता है आप स्पाइरल के अंदर आ जाएं। तो यही कह रहे हैं कि जो इनर स्पाइरल्स होते हैं उसके अंदर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम प्रोटोटाइप्स भी बना सकते हैं। और जो आउटर स्पाइरल्स हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे टेक ऑन अ क्लासिकल वाटरफॉल अप्रोच। ठीक है जी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आपको पता लग गई हैं। जब आपको रिक्वायरमेंट्स पता लग गई तो उसकी बेसिस के ऊपर आप अपना सोल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज नहीं होगा तो हम इसको कह रहे हैं कि वो वाटरफॉल मॉडल की तरह बिहेव करता है। अच्छा जी, ये चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि क्रिटिकल फैक्टर है कि ये एक रिस्क ड्रिवन मॉडल है। ठीक है जी, कि आप हर स्पाइरल जब आपका ख़त्म होता है तो उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि इस स्पाइरल के अंदर आपने जो काम किया था, पहली बात तो ये है कि वो काम सही था भी कि नहीं था। ठीक है जी, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप जब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको मैंने कहा था कि प्लान भी आप उसकी बेसिस के ऊपर करते हैं। ये जो आपका गो और नो गो डिसीजन होता है ये उस रिस्क असेसमेंट की बेस के ऊपर होता है कि फॉर एग्जांपल आप कस्टमर की इस वाली रिक्वायरमेंट को पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि इससे आपका प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है। जब आपने उस चेंज की असेसमेंट की तो हो सकता है उससे सर्टन रिस्क निकले कि आपका प्रोडक्ट क्या है, टाइम रिस्क निकला है कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, लेट्स से। तो यू विल डिसाइड कि वेदर यू वांट टू गो अहेड विद दैट और यू वांट टू बेसिकली टेल द कस्टमर कि नहीं जी आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। इफ यू वांट दैट देन वी विल डू इट, अदरवाइज वी वोंट। तो इस रिस्क असेसमेंट के इस तरह के फायदे होते हैं कि आप डिसाइड करते हैं कि आपने अब ये वाला काम करना है कि नहीं करना। और अगेन आपको यू नीड एक्सपर्ट्स who can do this risk assessment because I should tell you that this risk assessment that is not very easy. For example, एक रिक्वायरमेंट के अंदर अगर एक चेंज आ जाए, उस चेंज के इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। चेंज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? उस चेंज का इम्पैक्ट बड़ा सिंपल सा तो ये हो सकता है कि आपका प्लान चेंज होगा, आपका डिज़ाइन चेंज होगा, आपका कोड चेंज होगा। अब ये तो सिंपल है। सिंपल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई टेल यू वेरी आई पुट दिस फॉरवर्ड इन अ वेरी सिंपल वे। लेकिन अगर कोई रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज ऐसी आ गई जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर ही चेंज कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने घर का नक्शा बनवाया और घर के नक्शे के अंदर आपने बेसमेंट ही नहीं बनवाई, ठीक है, और आपने जब आप घर बनाना शुरू किया तो आपने कह दिया कि नहीं जी मुझे तो बेसमेंट भी चाहिए, लेट्स से दिस इज। तो जब ये सिनेरियो होगा तो दिस इज अ वेरी बिग चेंज। इस चेंज की वजह से आपकी पूरी फाउंडेशंस की वो सारी एवरीथिंग वुड चेंज अबाउट in the construction of your house, क्योंकि आपने एक नई रिक्वायरमेंट ले आए हैं which is totally different from what you actually wanted in the beginning, ठीक है। Now the risk of this requirement would be huge। यहाँ आप और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप कह दें कि जी नहीं मुझे ये किचन का ना विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी है अपने घर के अंदर, या किसी कमरे का थोड़ी सी डायमेंशन चेंज करनी है। Now this is a small problem comparing to कि आपने पहले घर में बेसमेंट थी नहीं और अब आप कह रहे हैं जी बेसमेंट भी बना दें, क्योंकि एक के अंदर आपका पूरा ही आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है, दूसरे के अंदर एक बड़ी माइन्यूट सी चेंज है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, दूसरे के अंदर नहीं हो रहा। तो जो रिस्क असेसमेंट होती है इसके अंदर यू हैव टू कंसिडर ऑल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है जी, कि इस रिस्क का इम्पैक्ट अगली स्टेज के ऊपर क्या होगा, ठीक है, ताकि आप फाइनल निकाल सकें कि इस रिस्क से आपका प्रोजेक्ट कितना डिले होगा और कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। और दिस स्पाइरल मॉडल, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये सूटेबल नहीं होगा क्योंकि रिस्क असेसमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो इफ द प्रोजेक्ट दैट यू हैव टू डिलीवर इन लेट्स से 6 months, द स्पाइरल मॉडल वोंट बी सूटेबल फॉर इट, ठीक है, क्योंकि आप उसमें से 3 महीने तो रिस्क असेसमेंट में लगा दें तो आप प्रोजेक्ट किस वक्त करेंगे, ठीक है। नाउ इफ अ प्रोजेक्ट इज ह्यूज देन यू विल से विल यूज स्पाइरल मॉडल और उसके अंदर आप रेगुलर रिस्क असेसमेंट करेंगे।
Okay जी, we will discuss what are the problems or what are the weaknesses of evolutionary process models. So सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो प्रोटोटाइप के अंदर क्या है कि आपने एक दफ़ा प्रोटोटाइप तो बना ली, ठीक है, उस प्रोटोटाइप के बनाने के बाद आपको अब ये नहीं पता कि आपकी कितनी आइटरेशंस होंगी, ठीक है। जिस तरह कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि प्रोटोटाइप के बाद आप कोई भी प्रोसेस मॉडल यूज़ कर सकते हैं। सो इन द सिंपलेस्ट सेंस यू से कि जी प्रोटोटाइप के बाद आप वाटरफॉल लगा दें, ठीक है। अगर बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, आपने प्रोटोटाइप बनाई, कस्टमर को सारी चीज़ें पता लगी जी मुझे ये चाहिए, और आपने उसकी बेस के ऊपर वाटरफॉल लगा दिया। लेकिन दिस कैन ऑल्सो हैपन कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम, आपने यू मेड अ प्रोटोटाइप, उसकी बेसिस के ऊपर कस्टमर हैव प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट्स और नाउ यू आर यूजिंग इंक्रीमेंटल मॉडल। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट श्योर हाउ मेनी इंक्रीमेंट्स you will use in this prototyping. The second problem with these evolutionary process models is that you have to determine certain speed of evolution. ठीक है जी, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस कर रहे हैं तो उसका नुकसान क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि इस पूरे एवोल्यूशनरी प्रोसेस के मॉडल्स के अंदर कस्टमर की फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कस्टमर आपको फीडबैक ही नहीं देगा तो आप अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस एवोल्यूशन के अंदर कस्टमर की इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी इस जो आपका एक एवोल्यूशनरी साइकिल है उसको बहुत छोटा कर देंगे तो हो सकता है आपको कस्टमर की फीडबैक ही ना मिले, क्योंकि कस्टमर की अवेलेबिलिटी दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर आपको लोगों से टाइम लेना पड़ता है पहले, एंड देन यू एक्चुअली गो एंड मीट देम, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ होगी तो अगेन द प्रोसेस विल फॉल इनटू केओस, और आपको जो आपने अपना प्रोसेस पूरा डिज़ाइन किया था इट विल फेल, ठीक है जी। और इफ़ द स्पीड इज़ वेरी स्लो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि अगर आप कस्टमर रिस्पॉन्स के लिए महीना महीना आपको वेट करना पड़ता है तो योर डेवलपर्स दे वुड बी सिटिंग आइडल, ठीक है, लेट्स से। तो ये आपका जो आपका एवोल्यूशन की स्पीड है इसके बारे में देयर आर नो गाइडलाइंस कि आपका एक एवोल्यूशन साइकिल इतने अरसे में होना चाहिए, देयर आर नो गाइडलाइंस एज सच। अच्छा, now the third very important aspect of these evolutionary process models is that when you are following an evolutionary process model तो your product or your design should be flexible and extensible, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका डिज़ाइन ही फ्लेक्सिबल नहीं है, एक्सटेंसिबल नहीं है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को इवॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। जो क्वालिटी है आपकी प्रोडक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने टेस्टिंग करनी है और इस तरह की चीज़ें दे कैन वेट, लेकिन जो आपका डिज़ाइन, आपका जो सोल्यूशन है इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इट शुड बी एक्सटेंसिबल। अगर आपका ये, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम प्रोटोटाइप के अंदर उसको थ्रो कहते क्यों है कि हम प्रोटोटाइप को फेंक देंगे या यू विल डिस्ट्रॉय दैट प्रोटोटाइप, या उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसके अंदर क्विक डिज़ाइन करते हैं, वी डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिज़ाइनिंग, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें अपने जो डिज़ाइन है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इट शुड बी एक्सटेंसिबल। और जिस तरह इसके अंदर जो पहली लाइन है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वी शुड प्रायोरिटाइज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ओवर जीरो डिफेक्ट्स। जो मैंने अभी आपसे पिछली लाइन में बोला था कि हम टेस्टिंग को बेशक थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, हम कहते हैं कि जी पहले हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की थी इस एवोल्यूशनरी साइकिल के लिए उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं और देन विल सी कि जी हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि हम पहले डेवलपमेंट कर लें और क्वालिटी के बारे में बाद में सोचेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोड के अंदर कमेंट्स नहीं दिए हुए, हमने कोई स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए, लेकिन हम उनको कर लेंगे, लेकिन पहला हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम इसको कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर आप अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे आपका जो एवोल्यूशनरी हमने कहा था साइकिल, जो हमने पिछली वाली प्रॉब्लम देखी थी कि इट विल गेट वेरी स्लो, कि अगर आप क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो दैट इज गेट वेरी स्लो। तो दीज टू, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3 दे आर इंटरलिंक्ड। कि प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है कि आपको अपने एवोल्यूशनरी साइकिल की स्पीड, देयर इज नो गाइडलाइंस दैट क्या आपको वो पता नहीं है कि वो कि आपने कितनी तेज़ी से एक साइकिल को कंप्लीट करना है। और जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो ये कहती है कि आप जब एक एवोल्यूशनरी साइकिल के अंदर अपना कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर यू शुड फोकस ऑन फिनिशिंग द जॉब फर्स्ट एंड देयर सेकंड प्रायोरिटी शुड बी क्वालिटी, ठीक है। लेकिन जब आपने जो डिज़ाइन किया दैट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल, ये चीज़ ज़हन में रखनी है, क्योंकि अगर आपका डिज़ाइन ही नहीं है फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल तो आप उसको नेक्स्ट अपनी प्रोडक्ट, आपकी इवॉल्वेबल प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी। तो डिज़ाइन शुड बी इवॉल्वेबल। आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि आप उसके अंदर नए कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकें, नई क्लासेस ऐड कर सकें, नई फंक्शनैलिटीज़ डाल सकें। ओके जी, सो दिस वाज द फाइनल प्रोसेस मॉडल दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज लेक्चर। सो वी हैव just to summarize, in this lecture what we have done is we have identified the generic
प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, जिसके अंदर सबसे पहली आपकी कम्युनिकेशन है, देन यू हैव प्लानिंग, then you have analysis and design, which is modeling. At number 4 we have construction, and finally we have deployment. So these are the generic activities that are in every process model. Then we saw few traditional process model, जिसके अंदर number 1 was waterfall model. ठीक है, हमने waterfall model देखा, we identified what are the problems in the waterfall model. कि सबसे पहली assumption waterfall model की क्या है कि we should know the requirements very well. If you don't know the requirements, the waterfall model नहीं चल सकता, क्योंकि it's a linear model. ठीक है, that was the biggest problem. Okay, you cannot go back in the waterfall model. ठीक है जी. The second process model that we covered, that was incremental model. Incremental model के अंदर भी हमारी assumption क्या थी कि requirements are well understood. उसमें requirements क्यों हमें पता होनी चाहिए अच्छी तरह, क्योंकि यू हैव टू प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट्स कि आपने कौन सी रिक्वायरमेंट्स पहले इंक्रीमेंट में करनी है, एंड विच रिक्वायरमेंट्स यू वांट टू डू इन द सेकंड इंक्रीमेंट, एंड विच रिक्वायरमेंट्स यू वांट टू डू इन द फॉलोइंग इंक्रीमेंट्स. सो दैट्स व्हाई वी से कि इन द इंक्रीमेंटल मॉडल यू शुड आल्सो नो और यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. तीसरे नंबर पे जो हमने प्रोसेस मॉडल किया, दैट वाज प्रोटोटाइपिंग मॉडल. प्रोटोटाइपिंग के अंदर जो हमने ये चीज़ देखी कि जो प्रोटोटाइप आप बनाते हैं, इसके अंदर दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट्स यू डोंट हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, देन यू यूज़ द प्रोटोटाइप मॉडल. तो पहले दो जो हमने प्रोसेस मॉडल्स पढ़े, उसके अंदर हमारी assumption ये कहती है कि हमें रिक्वायरमेंट्स को, या उसके अंदर हमारी assumption है कि यू शुड नो द रिक्वायरमेंट्स वेरी वेल. तीसरा जो प्रोसेस मॉडल है प्रोटोटाइप, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवोल्यूशनरी एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल. इन दैट वी से कि इवन इफ यू डोंट हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, यू कैन यूज़ दिस प्रोसेस मॉडल. तो जो हम प्रोटोटाइप के मॉडल के अंदर हमारा जो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स पता है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी बेसिस के ऊपर वी डिज़ाइन अ क्विक सोल्यूशन. क्विक सोल्यूशन, इसमें क्विक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्विक प्लानिंग करते हैं, क्विक डिज़ाइनिंग करते हैं, क्विक कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्योंकि हम डिज़ाइन के ऊपर भी बहुत टाइम नहीं लगाते, और क्योंकि हम डिज़ाइन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, तो यूजुअली वी थ्रो अवे दिस प्रोटोटाइप. और जो हम ये प्रोटोटाइप बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हम कस्टमर के पास जाएँ, उसे ये प्रोटोटाइप दिखाएँ, उसकी बेसिस के ऊपर उससे रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करा लें. ठीक है, यानी कि जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए प्रोटोटाइप बनाते हैं. और द फाइनल प्रोसेस मॉडल दैट वी हैव कवर्ड, दैट इज द स्पाइरल प्रोसेस मॉडल. ठीक है जी, द स्पाइरल प्रोसेस मॉडल है, अगेन दिस इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, और वही assumption है जो प्रोटोटाइपिंग के अंदर थी कि वी विल यूज इट व्हेन वी डोंट हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, और फाइनली हम लोगों ने क्या देखा है, वी आइडेंटिफाइड फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स विद दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स. कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें हर एवोल्यूशन साइकिल की स्पीड का ही नहीं पता. ठीक है, वी डोंट हैव एनी गाइडलाइंस कि हमें एवोल्यूशन, अगर हमारा एवोल्यूशन का साइकिल बहुत तेज़ हम करेंगे तो हमारा प्रोसेस फेल हो जाएगा. प्रोसेस फेल क्यों होगा? क्योंकि कस्टमर की फीडबैक नहीं आएगी. ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी जो इससे रिलेटेड ही थी, विच वॉज इन दिस एक्चुअली इन दिस फाइनल स्लाइड, कि हमें क्वालिटी और स्पीड के दरमियान कंपैरिजन, एक ट्रेड ऑफ करना होता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा एवोल्यूशन बहुत स्लो हो जाए, तो वी वांट टू फोकस ऑन स्पीड. ठीक है जी, और जो क्वालिटी है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सर्टेन कोडिंग स्टैंडर्ड्स, तो दे हैव टू वेट, लेकिन यू हैव टू एक्चुअली कंप्लीट द साइकिल फर्स्ट. ठीक है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 2 वेयर वी डिस्कस्ड डिफरेंट ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स. इन द फॉलोइंग लेक्चर we will see different examples, and we will try to figure out in which situation which process model would be more suitable, and I will try to show you a table with the different pros and cons of different process models. Thank you ji, and Assalamu alaikum.